گھگھیرا پولیس کی کامیاب کارروائی 2 سال قبل اغوا ہونے والے بچے کو سب انسپکٹر سید علی حسنین نے بازیاب کروا لیا، والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بچے کے ملنے پر والدین خوشی سے نہال، عوامی و سماجی حلقوں کا پولیس کو خراج تحسین۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کے احکامات پر ایکشن، منشیات سے پاک خیبر پختونخوا کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پولیس نے بین الصوبائی منشیات سمگلرز کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ ٹھری میروا کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی تعمیراتی کام میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا جانے لگا، اساتذہ اور طلبہ سراپا احتجاج بن گئے، مظاہرین کا متعلقہ اعلیٰ حکام سے ٹھیکیدار کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ پریشر ہارن استعمال کرنے والوں کے خلاف سرگرم، مختلف علاقوں میں گاڑیوں سے 103 پریشر ہارن اتار لیے گئے، گاڑی مالکان کو موقع پر جرمانہ کیا گیا۔ اور پشاور میں 9 تعینات ڈی پی او خیبر عمران خان اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، پولیس لائن خیبر پہنچنے پر خیبر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی، ڈی پی او آفس میں پولیس افسران نے پرتپاک استقبال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، گھگھیرا پولیس کی کامیاب کارروائی 2 سال قبل اغوا ہونے والے بچے کو ایس ایچ او گھگھیرا یاسر عباس گجر کی سربراہی میں سب انسپکٹر سید علی حسنین نے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کر دیا۔ نواحی گاؤں مستا پروکا کے رہائشی خادم حسین کھرل کے 6 سالہ بیٹے محمد اقبال کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ والدین کے علاوہ سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے گھگھیرا پولیس کی اس شاندار کارکردگی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کے احکامات پر ایکشن، منشیات سے پاک خیبر پختونخوا کے تحت سوات پولیس کا ڈی پی او زاہد نواز مروت کے زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈی ایس پی سرکل سٹی بادشاہ حضرات کے نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ منگورا مجید عالم خان کے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی منشیات سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کے قبضے سے منشیات برآمد کر لی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، ٹھری میروا کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے تعمیراتی کام میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا جانے لگا، اساتذہ اور طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اساتذہ اور طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار اسکول کے تعمیراتی کام کے لیے ناقص میٹیریل کا استعمال کر رہا ہے، بارش کے بعد اسکول کی چھت سے پانی برسنے لگا ہے۔ مظاہرین نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، حیدرآباد میں ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس سلیم میمن اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جمشید علی تالپور کی انفارمیشن پر بڑی کارروائی، خطیر مال کے سامان نے بھرا ہوا ٹرک تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ضبط کیے گئے ٹرک میں غیر ملکی کپڑا، بلیک ٹی، پلاسٹک دانہ اور دیگر سامان شامل ہے۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزمان کو کسٹم کورٹ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ پنڈی گھیپ میں ملک یاسین ایڈوکیٹ اور کاشف علی ملک ایڈوکیٹ نے بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر سید مدثر نذیر نقوی، جنرل سیکریٹری عاطف قریشی اور دیگر ممبران کو کامیاب ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وکلاء برادری کی یکجہتی اور ان کے حقوق کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن کے منعقد ہونے پر پرامن انتخابات میں وکلاء کی بھاری اکثریت نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے ثابت کیا کہ وہ اپنے اس ادارے کو ترقی کے خواہاں ہیں۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ پریشر ہارن استعمال کرنے والوں کے خلاف سرگرم ہے، مختلف علاقوں میں گاڑیوں سے 103 پریشر ہارن اتار لیے گئے، گاڑی مالکان کو موقع پر جرمانہ کیا گیا۔ کارروائی رنگ روڈ، جی ٹی روڈ، چارسدہ روڈ اور حسن خیل کے علاقے میں عمل میں لائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود کے مطابق پریشر ہارن اور لاؤڈ سپیکر کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے انتظامی افسران کو پریشر ہارن اور لاؤڈ سپیکر کے خلاف کارروائی روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنے کا حکم دیا اور اس ضمن میں کوئی رعایت نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔
नाजरीन, सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खवातीन ने घोड़ दौड़ के अलावा ऊँट दौड़ के हिस्सा लिया। सऊदी हुकाम का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले में खवातीन की शिरकत का मकसद उन्हें बाइख्तियार बनाना है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के करीब चट्ठा कंग अब्दुल अजीज़ ऊँट मेला जारी है। 38 सऊदी खवातीन ने रवायती सकाफती सऊदी लिबास में मलबूस होकर मुकाबले में हिस्सा लिया। खवातीन ने जहां ऊँट और घोड़ दौड़ में हिस्सा लिया, वहीं सऊदी सकाफत को भी उजागर किया। रेस देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि रेस में शरीक खवातीन ने बड़ी महारत के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। अपनी नौवियत की मुनफरिद मुकाबले का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना था, ताकि सऊदी खवातीन अपने मुल्क की बेहतरी में अपनी सलाहियतों को बरूह कार ला सकें। अब आपको बताएं कि पेशावर में 9 तैनात DPO खैबर इमरान खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन खैबर पहुंचने पर खैबर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। DPO ऑफिस में पुलिस अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल सलाम खालिद, DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद नवाज भी इनके हमरा मौजूद थे। तारीफी निशिस्त में पुलिस अफसरान और दीगर अमला भी मौजूद था। 9 तैनात DPO ने कहा कि इलाके की बेहतरी के लिए एक टीम बनकर काम करेंगे। इलाके से जराइम पेशा अफराद, मनशियात फरोशों का खात्मा और अमन व अमान बरकरार रखना तरजीहात में शामिल है। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। काशिफ खान की सदर मुंतखब हो गए। बासित मिर्जा बतौर सेक्रेटरी जीत गए। सैयद मेराज जैदी ने नायब सदर की सीट पर मैदान मार लिया। बतौर सदर काशिफ खान ने 314 वोट हासिल किए। चौधरी आमिर फ़हीम 252 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। मिर्जा बासित सरवर 319 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सादिकाबाद की बस्ती कलवाड़ में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बारिश की वजह से खस्ता हाल दीवार कमसन बच्चों पर गिर गई। मलबा तले दबकर 6 बच्चे दम तोड़ गए। जाम बहक होने वाले बच्चों में सकीना, शकीला, तस्लीमा, बुशरा, आमना और इकबाल शामिल हैं। बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अफसोसनाक वाक़े में इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। शेखुपुरा के नवाही गांव जबरा में पुलिस एहलकार पर मुल्जिमान की फायरिंग। फिरोजवाला पुलिस ने मुल्जिमान नदीम, एहसन और आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो मुल्जिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल सुफियान शदीद जख्मी हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से उनका साथी नदीम भी जख्मी होकर दम तोड़ गया। मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डहरकी में भी खाद की बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद ना मिलने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर दादन खान समेत दीगर ने कहा है कि खाद की अदम फराहमी के बायस फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे ज़िला में खाद की 2 फैक्ट्रियां होने के बावजूद किसान को खाद नहीं दी जा रही। मुनाफाखोर महंगी कीमत पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन डॉक्टर सानिया निश्तर की खानेवाल आमद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का जायजा लिया। देखते हैं खालिद चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मावन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोटाला सिंह का अचानक दौरा करके स्कूल में एहसास प्रोग्राम की अहल ख़वातीन और इनके एहसास तालीमी वज़ाइफ में शामिल बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने एहसास तालीमी वज़ाइफ के अहले बच्चों को डिजिटल अंदराज का जायजा लिया। मावन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर सानिया निश्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एहसास तालीमी वज़ाइफ और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो हैं, ये फाइनेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं एहसास के दायरे कार में। तो कच्ची से 12वीं जमात तक एहसास तालीमी वज़ाइफ होते हैं और फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होता है। जो एहसास के तालीमी वज़ाइफ हैं वो हर 3 महीने बाद एहसास की जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए वजीफा दिया जाता है। और ये वजीफा बच्चियों के लिए ज़्यादा और लड़कों के लिए उनके बनिस्बत थोड़ा कम होता है। प्राइमरी जमात में प्राइमरी लेवल पे लड़कों का 1500 और लड़कियों का 2000 होता है। फिर सेकेंडरी लेवल पे जो लड़कियों का होता है वो 2005, लड़कों का 2500, लड़कियों का 3000 और 11वीं और 12वीं में लड़कों का 3000।
रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं बहावलपुर में नायब अमीर जमात इस्लामी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि महंगाई के बायस गरीब आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। देखिए फजल जावेद खान की रिपोर्ट। बलोच ने कहा कि पीटीआई हुकूमत सियासी, मुआशी और अखलाकी महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसलिए इमरान खान अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हों और मैंडेट के लिए अवाम से रजू करते हुए अब इंतखाबात कराए जाए। वो बहावलपुर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। समझते हैं कि हुकूमत माशी महाज पर भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो एहतसाब करेंगे, लूटी दौलत वापस लाएंगे, लेकिन पीटीआई हुकूमत एहतसाब में भी नाकाम है। जो आवाम के खून पसीने की कमाई लूट ली गई, इमरान खान वापस लाने में नाकाम रहे। तो इस अरसे में पेट्रोल 45% महंगा हुआ है, बिजली 30 रुपये फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। इस हुकूमत ने ये वादा किया था जनूबी पंजाब और बहावलपुर की जो सूबे की हैसियत है वो बहाल की जाए। नाजरीन, रेनाला खुर्द में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया गया। देखिए चौधरी इमरान की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुद कमर महमूद, सीओ बल्दिया फयाज हलीम हाशमी ने रिनाला खुद के मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट किया, सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया और दुकानदारों को हदायत की जिन दुकानदारों ने रोड पर अशिया रखी तो उनके बारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। दुकानदारों को 2 दिन की वार्निंग दी गई और जो दुकानदारों ने चीनी को स्टॉक किया हुआ था उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला खुद का मुख्तलिफ मकामात का विज़िट रिनाला खुद में। अब आपको बताएं सियासी समाजी रहनुमा मोहम्मद अहसन बारी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखिए हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट। हारूनाबाद तहरीक अल्लाह अकबर के बानी मरूफ समाजी सियासी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद अहसान बारी तवील अलालत के बाद वफात पा गए। मरहूम शराफत की सियासत के अलमदार रहे। ज़माने तालिबे इल्मी में इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान की यूनियन के सदर मुंतखब हुए और तुलबा सियासत में कलीदी किरदार अदा किया। तरीके खत्म नबूवत 1974 के मरकजी कायदीन में शामिल रहे। MBBS करने के बाद जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार की और गरीब लोगों को गाँव-गाँव मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी की। दूर दराज इलाकों में सारी जिंदगी फ्री अदवायात और मेडिकल कैंप किए। अमरीत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने रहे। सारी जिंदगी असूलों पर समझौता नहीं किया। चंद साल पहले तहरीक अल्लाह अकबर की बुनियाद रखी लेकिन फलाही कामों में कमी नहीं आने दी। 1992 में दीनी जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कई बार आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनके सियासी मुखालिफिन भी इनकी किरदार नडर होने के और शराफत की सियासत के गवाह है। डॉक्टर एहसान बारी साहब, अल्लाह पाक उनको करबट जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। वो एक बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने खल्के खुदा की बहुत खिदमत की है। उन्होंने दिन रात एक करके गरीब। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद याविर अब्बास बुखारी के डॉक्टर फैसल हाशमी के घर आमद हुई। सूबाई वजीर ने डॉक्टर फैसल हाशमी को उनके साहबजादे अमीर हमजा हाशमी की शादी की मुबारकबाद दी। देखिए शेख जाफिर की रिपोर्ट। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद याविर अब्बास बुखारी कंट्री डायरेक्टर कोका कोला डॉक्टर फैसल हाशमी के घर आए, जहां पर मिसेस फैसल हाशमी, अमीर हसीब हाशमी और अमीर अली हाशमी ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सैयद यावर अब्बास बुखारी ने डॉक्टर फैसल हाशमी और उनकी फैमिली को उनके साहबजादे अमीर हमजा हाशमी की शादी की मुबारकबाद देते हुए दूल्हा दुल्हन को प्यार और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर सदर आजम कलात मार्केट मलक जमान नसीब, साबिक डायरेक्टर वजीर आला पंजाब शिकायत सेल शाहिद कादर, CEO गौतम अहमद शफीक और शहजाद गुजर ऑफ आरफ वाला भी सूबाई वजीर के हमरा थे। इस मौके पर डॉक्टर फैसल हाशमी ने सूबाई वजीर की सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के लिए खिदमात को सराहते हुए कहा कि हुकूमत का एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड स्कीम अवाम के लिए तरीके इंसाफ की हुकूमत का बेहतरीन तोहफा है।
MD वासा सैयद जाहिद अजीज कब्जा माफिया की मुबैना पुश्त पनाही करने लगे। करोड़ों रुपए की कीमती सरकारी अराजी पर घर बनाने के लिए रकम भी जारी कर दी गई। देखिए कामरान अली की रिपोर्ट। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कब्जा माफिया की पुश्तपनाही करने लगे। करोड़ों रुपए की कीमती अराजी पर घर बनाने के लिए मुलाजमीन को रकम भी जारी कर दी। लाहौर शादबाग के इलाका में वासा के दफ्तर में घरों की गैर कानूनी तामीर जारी। बिलाल हबीबी रहमान जिसकी सर्विस सिर्फ 4 साल है, 16,65,000 रुपए और 3 मरला कीमती अराजी अलाट की गई। इसके अलावा सईद खान, जाहिद खान जिनका ताल्लुक यूनियन से है, बताया जाता है 3-3 मरला और रकम जारी कर दी गई है। इसके अलावा SDO डॉक्टर मईन को 10 मरला कीमती अराजी और 28 लाख रुपए जारी कर दिए गए। जराये से यह भी पता चला है कि इन तमाम अफराद के पास पहले से जाती घर मौजूद हैं। अहले इलाका का कहना है कि कुछ अरसा पहले भी यहां पर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की गई, जो जिले इंतजामिया ने नाकाम बना दी। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI वेलफेयर विंग के नायब सदर मियां मजहर हनीफ ने मियां जावेद लतीफ और शहबाज अहमद से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर मियां जावेद लतीफ को मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI वेलफेयर विंग के नायब सदर मियां मजहर हनीफ ने मियां जावेद लतीफ और शहबाज अहमद से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर मियां जावेद लतीफ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मजहर हनीफ को खुशामदीद कहा गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां मजहर हनीफ का कहना था कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और उनकी क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर खुशहाल होकर तरक्की की राह पर गामजन होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।